Dear students, in today's video, again we will discuss important advanced level words for various competitive examinations like SSC, Bank PO, CDS, NDA, CAT, CLAT and other similar competitive examinations. These words are also highly useful for advanced learner. So without wasting any time, come to the word, and today's first word is audible. Audible means if somebody speaks and that voice, that sound is audible means जो सुनने के लायक हो, जो सुना जा सके, यानी loud enough to be heard, यानी व्यक्ति इतना जोर से बोले कि दूसरे लोग उसको आसानी से सुन सकें. So this word is very useful. Suppose I am teaching you online and right now just to confirm from all of you I can ask whether my voice is audible. क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं पर्याप्त रूप से जोर से बोल रहा हूं? क्या मेरी आवाज को सुन सके? इट इज बेसिकली एन एडजेक्टिव. ओके, हिंदी मीनिंग इज सुनाई पड़ने योग्य, सुनाई पड़ने वाला, यानी इतना जोर से कि दूसरे व्यक्ति को सुनाई दिया जा सके. लेट अस से सेंटेंस, ही वाज स्पीकिंग इन सच ए लो वॉइस दैट ही वाज बेयरली ऑडिबल एट द बैक ऑफ द हॉल. वो इतनी धीमी आवाज में बोल रहा था कि हॉल में जो पीछे की लाइनें थी, जो पीछे जो लोग बैठे हुए थे, उन्हें मुश्किल से, बेयरली ऑडिबल, यानी बड़े मुश्किल से उनको सुनाई दे रहा था. सो दिस इज ऑडिबल. इट्स अपोजिट वर्ड वी कैन मेक ओनली बाय एडिंग ए प्रीफिक्स दैट इज इन. सो इट बिकम्स इनऑडिबल. एंड इनऑडिबल वर्ड हैज बीन आस्क्ड इन SSC in last 15 years 7 times. So inaudible means something that cannot be heard, something that cannot be heard, जो सुना नहीं जा सके, that is inaudible. And audible means loud enough to be heard, जिसे आसानी से सुना जा सके. So very important word for all the people. Next is accomplish. Remember, this is accomplish. There is another similar sounding word that is accomplish. Sure. That is in place of C, that is SH. It means to achieve something, कोई चीज हासिल करना, accomplish करना. लेकिन ये एक नाउन है accomplish, और यह है किसी के गलत काम में, किसी क्राइम में, किसी अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति. सो इसलिए हिंदी में कहा गया सह अपराधी या अपराध में साथ देने वाला मीन्स ए पर्सन हु हेल्प समवन टू कमिट ए क्राइम, यानी वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने में साथ देता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? अकम्प्लिश कहलाता है. एंड देयर इज अनदर वर्ब दैट इज ए डबल अकम्प्लिश. रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब for competitive examination point of view and also for advanced learners. So accomplish, किसी चीज को हासिल कर लेना, अचीव कर लेना, that is accomplish. लेकिन दोनों में अंतर है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में. दिस इज accomplish and this is accomplish. Okay, look at the sentence. The gang leader was arrested but his accomplices got away. कि जो गैंग का लीडर था, यानी जो बदमाशों का जो ग्रुप था, जो क्रिमिनल्स का जो गिरोह था, उसका सरगना लीडर तो पकड़ा गया, लेकिन जो उसके साथी थे, यानी उसके अपराध में जो सह अपराधी थे, accomplices, so it has become plural now because it's a noun, so can be made plural by adding s. get away phrasal verb है, इसलिए पास्ट में लिखा got away. क्लियर कि चले जाओ. ओके, नेक्स्ट है, he is serving life for acting as an accomplice to murder. कि वह किसी मर्डर में साथ देने के आरोप में वह जेल में सजा काट रहा है. सो ही इज सर्विंग फॉर लाइफ, यानी आजीवन सजा काट रहा है किसी मर्डर में साथ देने के लिए. इन SSC this particular word has been asked 6 times in last 15 years till 2020, means last paper of this 2018 was conducted in 2020. So 18 तक जो शब्द पूछे गए हैं उनमें ये 6 बार पूछा जा चुका है. मीनिंग है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग. ये SSC में दिया हुआ मीनिंग था. And remember this particular meaning in Hindi and English, its correct pronunciation
its word category, whether it's a noun, verb, or adjective, and sentences. I have compiled almost 2,000 important words which are frequently asked in various competitive examinations, and every word has got its correct pronunciation, its grammatical category, noun, pronoun, adjective, adverb, or verb, then meaning in Hindi and English, and at least 2-3 sentences on every word. So this book will be highly useful for your competitive examinations for antonym and synonym and one word substitute. Okay, so read this book, and certainly it will be highly beneficial for all of you. Okay, so next important word apart from accomplish is brittle. So brittle has got 3 meanings, but the first important meaning, something which can easily be broken, though that is hard if you touch it. किसी चीज को छुए तो वैसे तो वो हार्ड लगती है, लेकिन आसानी से टूट जाता. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक ए ग्लास, this looks very hard, this glass, but if you just drop it on the floor, it will easily break, ये टूट जाएगा. तो ये भंगुर है, यानी हार्ड तो है पर आसानी से टूट जाता है. क्लियर? सो ऐसी चीजों को हम कहते हैं हार्ड बट इजीली ब्रोकन, मीन्स भंगुर, यानी सख्त लेकिन जल्दी से टूटने वाला. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन आस्क्ड इन SSC in last 15 years, and 7 times it has been asked. So hard but easily broken or liable to break easily, जो आसानी से टूट सके, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके. Look at the sentence. As we grow older, our bones become increasingly brittle. जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है. क्लियर? हमारी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो क्या बन जाते हैं? ब्रिटिल बन जाते हैं. दिखने में तो कड़क लगती हैं पर आसानी से टूट जाती हैं. बुजुर्ग व्यक्ति जरा सा भी कहीं गिर जाए तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर ड्राई एंड ब्रिटल. कि जो पेड़ की शाखाएं थी वो बहुत सूखी हुई थी और ब्रिटल थी, जो आसानी से टूट जाती थी. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग इज इजीली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, इजीली हर्ट और अफेंडेड, यानी कोई व्यक्ति कोई वस्तु ऐसी जो आसानी से डैमेज हो जाए या खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए. और कुछ लोग भी ऐसे जो आसानी से जिनको अपसेट किया जा सके, जिनकी भावनाओं को आहत किया जा सके और तुरंत बुरा मान जाते हैं, इजीली हर्ट एंड अफेंडेड. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नर्वस एंड स्पीकिंग विद ब्रिटल कॉन्फिडेंस. वो बहुत नर्वस थी और उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही टूटा हुआ था, उसका आत्मविश्वास बहुत गिरा हुआ था, कम था. यानी आत्मविश्वास क्या था? ब्रिटिल था, लो था, डिस्ट्रॉयड, जो खत्म हो चुका हुआ आत्मविश्वास था. नेक्स्ट सेंटेंस, सम पीपल ऑफ ब्रिटल पर्सनालिटी एंड गेट इरिटेटेड इजीली. कुछ लोगों का व्यक्तित्व ब्रिटल होता है और वो बहुत जल्दी आसानी से इरिटेट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, कुड़कुड़ा जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं. So they are easily hurt and offended. Very good meaning, and it is useful for all advanced learners also, apart from competitive examinations. Remember, there is no shortcut to remember the words and to keep the word for a longer period in the mind. Though some people give some technique, they say that you associate this with this, and once I was watching a video about high level vocab and somebody was telling that there is a one word mollify. So वो कहते हैं मूली खा के भूख को मोलिफाई कर लो, मीन्स शांत कर लो. Somebody was telling about this word rumble. Rumble का वैसे तो जैसे बाल जल गड़गड़ाहट के साथ जो गरजते हैं ना, that is rumble. तो ऐसे आदमी भी कई बार बहुत जोर जोर से चिल्लाता चीखता है तो रंबल करना कहते हैं. तो कहता है रम पियो तो बल आ जाता है तो चिल्लाता है. बट आई डोंट बिलीव that such type of technique will last longer. No, ये शॉर्टकट तो हो सकता है टाइम बीइंग के लिए, पर कितने शब्दों को याद करोगे? जैसे somebody was teaching about this word nepotism. So कहता है कि आप ये POTI को मान लो पोती मीन somebody's granddaughter, तो उसका फेवर करता है, मीन्स अपने रिश्तेदारों का फेवर करता है. लेकिन ऐसी टेक्निक कितने शब्दों में अप्लाई करोगे? 10, 20, 50, 100, 150, 200. यू कैन नॉट अप्लाई सच टाइप ऑफ टेक्निक इन मोर वर्ड्स. सो द राइट वे इज
look at the word very attentively, look at its pronunciation, its grammatical category, then its meaning, and use the words in sentences. Learn the words in some context. Okay. थर्ड मीनिंग इज शोविंग नो वार्म फीलिंग, यानी उदासीन जो रहता है, किसी प्रकार की भावनाएं नहीं दिखाता, जोश खरोश नहीं दिखाता. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव ए ब्रिटल लाफ एंड टर्न अवे. उसने एक तरह उदासीनता पूर्वक की हंसी दिखाई और टर्न अवे हो गया, यानी वहां से चले गए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ब्रिटल, दो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओनली द फर्स्ट मीनिंग हैज बीन आस्क्ड, लेकिन ये व्यक्ति के स्वभाव के लिए भी हो सकता है और उसकी फीलिंग्स के लिए भी हो सकता है. Another important word is exonerate. This is directly related to some judicial inquiries. कोई व्यक्ति अपराध करे, कोई क्राइम कर दे और जज उसको अपराध से मुक्त कर दे, उसको बरी कर दे कोर्ट, तो उसे exonerate करना कहते हैं. Exonerate, clear? It means, or it is a verb basically. It's a verb. So to state officially that someone is not guilty of a crime और रिस्पॉन्सिबल फॉर ए बैड सिचुएशन, कि किसी को पूरी तरीके से अपराध का जो, यानी वो अपराध का जो दोष उस पर नहीं है, उसे ऑफिशियली बरी कर दिया जाए और कह दिया जाए कि ये इस बुरी सिचुएशन के लिए या इस अपराध के लिए ये जिम्मेदार नहीं है. इट मीन्स दोष मुक्त करना, निर्दोष ठहराना, बरी करना. क्लियर? देयर इज अनदर वीडियो ऑल्सो इन विच आई हैव गिवन ऑल द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड exonerate. And in SSC, all these words have been asked in one word substitutes. One word substitute means for a longer meaning, कि 8-10-15 शब्दों के जगह एक शब्द का यूज करना. Okay? Look at the sentence. The court ultimately exonerated the minister from all charges of corruption. कि कोर्ट ने आखिरकार अल्टीमेटली मंत्री पर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे उनसे एक्सोनरेट कर दिया. और ऐसा ही होता है. यू जस्ट रिलेट इट विथ टूडेज लाइफ. इट हैपन्स इफ मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स इफ आर अरेस्टेड ऑफ द चार्जेस ऑफ सम करप्शन, आफ्टर 1-2-3 years or 1 week or 2 weeks they are released by the court. In most of the cases it happens so. Next sentence is, the report exonerated the driver from all responsibilities of accident. कि रिपोर्ट ने जो एक्सीडेंट की जो जिम्मेदारी थी उससे ड्राइवर को दोष मुक्त कर दिया. एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में ये सारे वर्ड्स पूछे गए हैं और ये 15 साल में 6 बार पूछा गया है. और इसका जो सेंटेंस दिया था, मीनिंग दिया था एसएससी ने, दैट इज टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, कि किसी व्यक्ति को सभी दोषों से, जो भी दोष थे उसके, उसे मुक्त कर देना, उसे बरी कर देना. एंड दिस इज द मीनिंग गिवन आवर बुक हाई लेवल वोकैबुलरी. क्लियर? वी हैव गिवन द मीनिंग इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो students of both the mediums, Hindi medium as well as English medium, can easily learn all these words. Okay? Next important word is inevitable. There is a word evitable. उसका अपोजिट है inevitable. Inevitable means जिसे टाला नहीं जा सके, जो कहना जिसे टाला नहीं जा, means certain to happen, impossible to avoid or prevent, कि उसे बचना मुश्किल है, वो होगा ही होगा, means अपरिहार्य, जिसे टाला न जा सके, मीन्स अनअवॉइडेबल. सिनोनिम में पूछा गया था, पर एसएससी में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में 15 साल में 6 बार पूछा गया. एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट मीन्स समथिंग इज अनअवॉइडेबल. लुक एट द सेंटेंस. ड्यू टू हाइक इन रेपो रेट. रेपो रेट का मतलब जो रिजर्व बैंक होता है, जो बैंक को जो लोन देता है, उस पर जो ब्याज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं. Okay, so due to hike in repo rate, a rise in the interest rate seems inevitable. कि जब रेपो रेट बढ़ गया, यानी आरबीआई ने बैंक को कर्जा देना महंगा कर दिया, ज़्यादा ब्याज लेना शुरू कर दिया बैंक से भी, तो नेचुरली आगे भी बैंक जब किसी को लोन देंगे तो जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे. तो इसका मतलब है कि अब जो इंटरेस्ट में, जो लोन पर जो इंटरेस्ट है, अब उसका बढ़ना अपरिहार्य, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब रिजर्व बैंक महंगा दे रहा है बैंक को लोन, तो जो बैंक आगे लोन देंगे वो भी महंगा ही देंगे. नेक्स्ट, ए फर्दर एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस सीम्स इनएविटेबल. कि ये जो क्राइसिस है, क्लियर, इसका बढ़ना, एस्केलेशन का मतलब बढ़ोतरी होना, उसमें जो और बढ़ोतरी हो गई है,
वो इनएविटेबल मालूम पड़ती है, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा लगता है कि इसे बचा नहीं जा सकता, इस क्राइसिस को तो बढ़ना ही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट सीम्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल दैट ही विल डिस्कवर एनी एरर इन द अकाउंट्स, कि ये ऑलमोस्ट इनएविटेबल देखता है कि उसको कोई ना कोई गलती डिस्कवर करे। And last sentence is health problems are an inevitable consequence of poor living conditions, कि अगर रहने की स्थितियां सही नहीं है, गंदगी है, गरीबी है, तो नेचुरली हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, वो अनअवॉइडेबल है। इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंस का रिजल्ट, परिणाम है। सो रिमेंबर, इफ यू रीड आवर बुक हाई लेवल वोकैबुलरी, it will help you in several ways. It will just help you enhance the advanced level word power, and also it will give the correct pronunciation, so you will be learning the correct pronunciation. And moreover, 3, 4, 5 sentence examples have been given about every word, and these words will certainly, I tell you, help you improve your English language also, because in all sentences also we are giving you several important words like escalation, consequence, poor living conditions, and discover. Such type of words are definitely help you improve your knowledge of English language. Okay, so read this book several times, and certainly I assure you, almost all 80-90% words of various competitive examinations, this single book covers about antonym, synonym, and one word substitute. Okay, so these are the words which will be highly useful for all of you. Once again, I want to tell you, if you want to improve your word power or retain the word for a longer period, then you must read something every day. Read some newspapers, read some advanced level books and magazines, means the books or magazines which has got or which use generally advanced level words. And these video lessons and our book high level vocabulary will definitely help you improve your vocabulary or your advanced level word power. Okay, thank you very much. Have a nice day.